Continuing with chapter number 2, relations and functions. We already have talked about relations. What is the relation? What is a relation? Relation R from A to B is a subset of A cross B, right? हम आज कुछ और examples देखेंगे. We have looked at a few examples. We'll look at a few more examples today. Firstly, I'll introduce a new language here. A relation R is defined on n, that is natural numbers. And relation R is defined on n का क्या मतलब हुआ? That relation is defined from n to n. बात समझ में आ रही है क्या? So I hope ये लाइन समझ में आती है. Is defined on n मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा और सेकंड एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा. Is it clear everyone? So relation R is defined on n such that R is equals to x comma x cube, where x belongs to natural number obviously and x is less than 5. So क्या कहा मैंने कि एक relation is defined, R is defined on n, so R is defined from n to n such that R is equals to x comma x cube, where x belongs to natural number. अगर मैं ये ना भी लिखता तो भी डिफाइंड था कि x नेचुरल नंबर ही होगा, बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर से आएंगे. यस और नो? तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं नहीं भी देता तो भी नेचुरल नंबर्स ही मानते. एंड x is less than 5. So what will be this relation? Let's see. This relation R would be, now x is less than 5, so x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? 1, 2, 3 और 4, because x needs to be natural number. Yes or no? Yes sir. So if 1 लिया तो 1 का क्यूब 1, then 2 comma 8, then 3 comma 27, and then 4 comma 64. Any problem anyone? No sir. सबको समझ में आती है बात कि क्या हो रहा है रिलेशंस के साथ? ओके, यहाँ पे जब मैं कहता हूं n to n, so our relation is a subset of n cross n, right? Yes or no? R is a subset of n cross n. Now ये n cross n क्या होगा? सबको समझ में आता है क्या? Not for the writing purpose, but for the sake of understanding. Can we understand what will be n cross n? It will be 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4 till 1 comma 1000 till so on. It will go on forever. 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3 and so on. 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3 and so on forever. 4 comma 1, 4 comma 2, 4 comma 3 and so on. 5 comma 1, 5 comma 2 and यहाँ पे भी नीचे जाते जाएगा. So it will be an infinite set. Yes or no? सबको समझ में आता है क्या? उसमें से कुछ एलिमेंट्स क्या हुए मेरे इंक्लूड हुए हैं इस रिलेशन में. So definitely R is a subset of n cross n. Any problem anyone कि how we are defining relations? Okay, I believe नहीं है. Now there is one more way to represent relations. Okay, and I'll explain it with this example. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. यहाँ पे मैं कुछ खास नंबर लिखूंगा, कुछ नंबर्स नहीं लिखूंगा, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है. यहाँ पे इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम. क्या बोलते हैं? This is a much more pictorial way to represent the same expression. Okay, देखिए जरा ध्यान से क्या होता है. ये let's say set A है, ये let's say set B है. In this case ये दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स है.
Yes or no? Yes or no? Yes, sir. ओके, सो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आने चाहिए थे, बट मैंने सारे नहीं लिखे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली राइटिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स विल नॉट बी अ प्रैक्टिकल थिंग. नाउ उसके बाद में मैं किस तरह से अरेंज करता हूँ. 1 इज कनेक्टेड टू 1, 2 is connected to 8, 3 is connected to 27, and 4 is connected to 64. Yes or no? Yes, हम sir. रिलेशंस को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम से. सबको समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. Which is a very simple thing, सब कोई समझ सकता है बहुत easily. Now, let me take one more example. Let's say A is 1, 2, 3, 4 and 5, and given है R is defined on A. डिफाइंड ऑन ए का क्या मतलब है? डिफाइंड ऑन ए का क्या मतलब है? बोले भाई क्या हुआ? इफ देयर विल बी नो रिस्पांस, व्हाट एम आई, हु एम आई टीचिंग टू? R is defined on A का क्या मतलब है? That R is from A to A. समझ में आती है बात? डिफाइंड ऑन ए का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए से आएगा. एनी इश्यूज एनीवन? नाउ आई वांट ऑल Yes. ऑफ यू टू राइट इट्स रोस्टर फॉर्म. Write the ordered pairs that will be included. So as soon as we start writing x belongs to A, so जाहिर बात है मैंने कहा 1, 1 आएगा, 2, 4 आएगा, and that's it. I will not write 3, 9, 4, 16 and 5, 25. ये तीन एलिमेंट्स मैं नहीं लिखूंगा. कोई बताएगा मुझे रीजन क्या है? ओके, किस किसने लिख लिए थे ये तीनों एलिमेंट्स भी? एक बार बताएं, यस बोल के बताएं अनम्यूट करके अपने आप को. Yes, sir. लिखा था? Yes. ओके, मैं Yes, sir. नहीं लिखूंगा इसे. आई विल नॉट इंक्लूड दीज 3 एलिमेंट्स बिकॉज. कोई बताना चाहेगा? देखें मैंने क्या कहा है. दिस फंक्शन इज डिफाइंड, सॉरी दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए. मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स भी यहां से आएंगे और सेकंड एलिमेंट्स भी यहीं से आने चाहिए. तो ये जो 9 है, ये 16 है और ये 25 है, डज दिस बिलोंग टू ए? No, sir. तो फिर हम इन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते हमारे सॉल्यूशन में. तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये कोई फालतू चीज नहीं लिखी हुई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहां से कहां तक डिफाइंड है कोई भी रिलेशन. ओके, Yes. Yes. सबको समझ में आई बात? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से 2 एलिमेंट्स होंगे. अब इसका एरो डायग्राम अगर मैं बनाता तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5. तो मैं ये गलती तुम एरो डायग्राम में कभी भी नहीं करते. देखो तुम कहते ये A to A डिफाइंड है सर. अब तुम कनेक्ट करना स्टार्ट करते, 1 को 1 से कनेक्ट करते, 2 को 4 से कनेक्ट करते, फिर तुम कहते अच्छा सर 3 को कनेक्ट करने के लिए लाइन है ही नहीं. यस और नो? Yes, sir. क्या Yes. हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है? Yes, sir. Okay, now I will introduce 2 words. Okay, inputs and outputs. Okay, मैं क्या कहता हूं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इनको मैं कहता हूं इनपुट्स, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स के उन्हें हम कहते हैं आउटपुट्स. कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ओके, ध्यान से देखेंगे. सेट ऑफ इनपुट्स को कहा जाता है
Domain, very important word. Set of inputs को क्या कहा जाता है? Domain, and that is given by 1, 2 in this case. Set of outputs को हम कहते हैं range. क्या कहते हैं? Range. इस रिलेशन का रेंज क्या है? इस रिलेशन का रेंज है 1, 4. बात समझ में आ रही है क्या? द सेट ऑफ आउटपुट्स. एनी प्रॉब्लम एनीवन? क्या ये No, दो sir. वर्ड्स हमें समझ में आते हैं? अगर हमें रिलेशन Yes, समझ sir. में आएगा, अगर हम रिलेशन लिख पाएंगे, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि क्या क्या इनपुट्स हम दे सकते हैं और क्या क्या आउटपुट्स हम ले सकते हैं. तो अगर मैं कह रहा हूँ 1, 1 and 2, 4, जस्ट बाय लुकिंग एट इट आई कैन से जो ये 1 और 2 है, ये मेरे इनपुट्स हैं क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं. यस और नो? Yes, sir. एंड ये 1 और ये 4 मेरे आउटपुट्स होंगे क्योंकि ये सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स. एनी इश्यूज एनीवन? No, sir. एक और वर्ड होता है एंड दैट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज सेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट्स. पोटेंशियल आउटपुट्स मतलब क्या क्या आउटपुट हो सकते थे. कोई मुझे बताएगा क्या क्या आउटपुट हो सकते थे? कहाँ गिवन है? अगेन हियर पे अटेंशन. क्या कहा गया? फ्रॉम ए टू ए, मतलब जितने भी आउटपुट्स आने वो सारे के सारे ए से आएंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ए से बाहर जाए. यस और नो? यस और नो? समझ में आ रही है क्या बात? सेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट्स, Yes, sir. इसको हम नाम देते हैं कोडोमेन. क्या कहते हैं? कोडोमेन. इट्स ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन. तुम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते इसे. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम फिर इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. In this case it would be 1, 2, 3, 4, 5. कोई तकलीफ No, sir. किसी को भी? ओके. मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे. Sir, Range is always a subset or equals to codomain. True or false? रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा. यस और नो? Yes, sir. जाहिर बात है कि उससे आगे तो जा नहीं सकता, या तो उसके बराबर हो सकता है या उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमेशा आउटपुट बनेंगे. यस और नो? So this is perfectly all right. This is one of the definitions of range. Clear है बात? Yes, sir. In the above example, हम ये तीनों वर्ड्स के बारे में बात करते हैं. कोई मुझे बताएगा यहाँ पे डोमेन क्या है? हृदय बेटा, इसमें डोमेन क्या है इस वाले क्वेश्चन में? sir, 1, 2, 3, 4. Perfect. 1, 2, 3 and 4 फर्स्ट एलिमेंट्स, या फिर क्या बोलेंगे इन्हें? इनपुट्स. बात समझ में आ रही है क्या? ओके. व्हाट इज रेंज हियर? कौन बता रहा है मुझे? कनक? Yes, sir. Sir, 1, 8, 27 and 64. बिल्कुल सही. 1, 8, 27 and 64. Hitesh will tell me what is the codomain here. Hitesh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. बस 7 तक रुक जाएंगे? 7 पे रुक जाएंगे क्या? Yes, sir.
नहीं। कोडोमेन हमेशा कहाँ होती है? करुणा, व्हाट इज कोडोमेन हियर बेटा? सर 1 2 3 4 to infinity. बिल्कुल सही। हम राधा इसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। इसका एक नाम है अब हमारे पास, और वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। हितेश समझ में आती है क्या बात बेटा? Yes, sir. बिकॉज ऑल द पोटेंशियल आउटपुट्स के जो भी आउटपुट्स आने वो कहाँ से आएंगे? नेचुरल नंबर से आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है? कोडोमेन। क्या ये 3 वर्ड्स क्लियर हैं सबको? Yes. Okay, let's talk about NCERT now. Exercise 2.2. Let's talk about question number 1. What does the question number 1 say? A is defined as a set which contains natural numbers from 1 to 14. Yes or no? 1, 2, 3 till 14. And a relation R from A to A is defined by R is equals to x comma y such that 3x minus y is equals to 0 and जाहिर बात है x comma y will belong to A. ये चीज लिखना बहुत जरूरी है क्या? I may skip this part because already given क्या है क्वेश्चन में that R is from A to A. इसका मतलब ये जो x है वो हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा और ये जो y है हमेशा सेकंड सेट से आएगा। समझ में आती है क्या सबको बात? Yes. Okay. Now if I need to write it in the tabular form or in the roster form, how will I write it? कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे? तो भाई इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में देखें तो ये 3x is equals to y ही तो है। Yes or no? Yes. चलो तो मैंने इसको लिखना शुरू किया। मैंने कहा x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3, x को 2 पुट करते हैं y की वैल्यू 6, x को 3 पुट करते हैं y की वैल्यू 9, x को 4 पुट करते हैं y की वैल्यू 12, x को 5 पुट करते हैं y की वैल्यू 15, x को 6 पुट करते हैं y की वैल्यू 18, x को 7 पुट करते हैं y की वैल्यू 21। सही कर रहा हूं क्या या गलती कर रहा हूं उसमें कुछ? ज्यादा आगे चले गए सर वो 4, 12 तक आ गया। बिल्कुल सही सर, आप तो भावना में बह गए। ये तीनों एलिमेंट्स नहीं आ सकते। व्हाई? Because my second element should always be from the given range या फिर given codomain. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो हम 12 पे आके रुक जाएंगे। Now in this question, Bhavya, what is the domain beta? 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3 and 4. What is range, Kanak? Sir 3, 6, 9, 12. Okay. Rishabh, what is the codomain here? 1 to 14. बिल्कुल सही, जिसको मैं सेट ए भी कह सकता हूँ। Any problem anyone? No, sir. Okay, moving on to question number 2. It says define a relation R on the set n of natural numbers defined on the set n. Defined on the set n का क्या मतलब हुआ? इनपुट भी n से आएगा और आउटपुट भी n से ही आएगा। Yes or no? Yes, sir. Okay. Now it says x comma y where y is equals to x plus 5. X is a natural number less than 4. So x is a natural number less than 4 मतलब 1, 2 और 3 put करेंगे. We will get the outputs as y and we will have our relation ready. Any problem anyone? So I'm not writing this. We'll do it as a part of homework. If we'll get doubt, we'll discuss it tomorrow. Okay. Question number 3. A is 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 5 and B is 4, 6, 9. Define a relation R from A to B. Defined from A to B. जब ये लिख दिया तो कोडोमेन फिक्स हो गया क्या? What is the codomain? सिर्फ इतना पढ़ने के बाद, from A to B पढ़ने के बाद कोई मुझे बताएगा कोडोमेन क्या है इस क्वेश्चन का? Sir B. बिल्कुल सही. This set B is called codomain. Any problem anyone? No, sir. It says देखो अब इन्होंने जो रिलेशन एस्टैब्लिश किया है x और y में वो कैसा है? That x, the difference of
x and y is odd. Difference of x and y is odd. Okay, so a क्या है? देखो मैं इसको इस बार एरो डायग्राम से बताता हूँ. 1, 2, 3, 5. I love arrow diagrams because it talks volume about the concept. ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आता है. 4, 6, 9 ये A है, ये B है. A to B मैंने एक रिलेशन डिफाइन करना चाहा. Yes or no? Now let's connect what elements we can connect. मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैं दो एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहा हूँ उनका जो डिफरेंस आएगा वो ऑड आना चाहिए, राइट? तो मैं कहता हूँ 1 - 4. क्या मुझे 1 को 4 से कनेक्ट करना चाहिए? Yes, because the difference is 3 and that is odd. Yes. क्या मुझे 1 को 6 से कनेक्ट करना चाहिए? Yes, sir. क्या मुझे 1 को 9 से कनेक्ट करना चाहिए? No, sir. No, मैं 1 को 9 से कनेक्ट नहीं करूंगा because 1 - 9, 1 and 9 का difference is 8, which is not odd. Any problem anyone? No, sir. Similarly, 2 को किससे कनेक्ट किया जाएगा? 4 से कनेक्ट किया जाएगा क्या? 2 को 4 से किया जा सकता है? No. 2 को 6 से किया जा सकता है? नहीं. 2 को 9 से किया जा सकेगा. And now I believe सबको समझ में आता है. 3 को इवन नंबर्स के साथ करेंगे, ऑड नंबर्स को इवन के साथ करेंगे, इवन नंबर्स को ऑड के साथ करेंगे. Yes or no? Yes. Yes. Sir. Now इसका डोमेन 1 2 3 5, इसका कोडोमेन 4 6 9, इसका रेंज भी 4 6 9. So you can write this again as a part of your homework. Question number 4. The given figure 2.7, it's an arrow diagram. तो क्या हम arrow diagram में अब समझ सकते हैं? 5 6 7 and 3 4 and 5. It's defined from P to Q. And it says write this relation in set builder form. तो सेट बिल्डर में लिखना है. सेट बिल्डर में लिखा जा सकता है क्या? पहले रोस्टर में लिख लो. चलो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. तो रिलेशन आर क्या है भाई? 5, 3, 6, 4 and 7, 5. Any problem anyone? Now No, No, sir. sir. मैं सेट बिल्डर की बात करता हूँ. तो सेट बिल्डर में हम हमेशा क्या करते हैं? एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जो सब एलिमेंट्स में अप्लाई हो रही हो. Yes or no? Yes, sir. चलो Yes, कोई sir. कोई एस्टैब्लिश कर सकता है कुछ एक रिलेशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद? X minus Y equals to 2. Perfect. X minus y is equals to 2. So R को हम डिफाइन कैसे करेंगे सेट बिल्डर में? That R is a relation defined as ordered pairs x, y such that x minus y is equals to 2. Do I need to write that x belongs to P and y belongs to Q? लिखता हूं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं भी लिखता तो भी ये सेल्फ डिफाइंड है because relation R is defined from P to Q given equation में. Yes or no? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Now No, can we sir. write its domain and range? Yes. Yes, sir. Yes. Question number 5 will be again your homework. 6th will be your homework. 7th will be your homework. Question number 8. A is x, y, z and B is 1, 2. How many relations are possible from A to B? कल भी कराया था मैंने एक क्वेश्चन, देखें किसको याद है. कल as in So Monday b to को the sorry. power 5. 2 to the Yes, power? sir. Yes. 2 to the power 5. 5. 2. Okay, anything else? Anyone else? Sir, 6. 2 की power 6. 2 की power 6 is the right answer. ये कनक ने थोड़ा सा गलत बोल दिया. अदिति ने भी सेम बोला था कि 2 की पावर 5 ही बोला था. Yes, sir. Okay, what is the concept? That relation R is a subset of A cross B, right? And number of elements in A cross B here will be 6. तो इसके कितने subsets possible है? 2 की power 6. Any problem anyone? No, sir.
Okay, question number 9. Find R, let R be the relation on Z. On Z का क्या मतलब हुआ? From Z to Z. Yes or no? Yes. बार बार एक ही Yes. चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, प्लीज समझें इस बात को, है ना? From Z to Z defined by R is equals to A comma B such that A minus B is an integer. ओके, मुझे एक बात बताओ, अब ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया, राइट? इसके अंदर जैसे ऊपर तक क्या होता था कि हमारे पास कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट होती थी एंड एक बहुत ही स्पेसिफिक आंसर आता था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा थॉट पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, क्या हमेशा इंटीजर आएगा? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. किसी को भी Yes, sir. तकलीफ, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि आर जो आएगा वो जेड क्रॉस जेड के इक्वल आएगा एकदम, Yes, sir. कि z क्रॉस z मतलब कोई भी दो इंटीजर्स का ऑर्डर्ड पेयर ले लो, द डिफरेंस ऑफ देम विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ये थोड़ा सा बेसिक सा वाइडन क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे इन जनरल बात कर ले सबके बारे में। क्लियर है क्या? Yes, दैट इज sir. इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।